ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਗਲੌਰ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ, ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂ। ਖਾਲੀ 2 ਏਕੜ ਬਚੇ। ਉਹ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਇਟਸ ਅ ਫੋਰੈਸਟ। 17,000 varieties coexist. This is my milestone achievement of 25 years in agriculture. कि ये मेरा छोटा सा लड़का जो अमृत है, उसने कित कर दिखाला। This is my reward. That is all. Yeah. ਸਲਾਮ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ, ਤੇਰੀ ਸਕੂਨੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਨੂਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਵਰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? संगीता शर्मा है। अच्छा। और मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। वेरी प्राउड पंजाबी, बट ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਊਥ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਗਲੌਰ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ took an early retirement आर्मी ਤੋਂ। अच्छा। तो उन्होंने बड़े विजनरी सीगे। उन्होंने कहा कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेकर मैं अपना डेयरी फार्म सेटअप करेंगे। अच्छा। तो वो करते करते 30 एकड़ लिती बैंगलोर से। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अपना गेहूं, he was the first person who grew wheat, गेहूं in बैंगलोर। तो साइंटिस्ट बहुत हैरान कि ये एक नॉर्थ इंडियन आकर इधर गेहूं हमको सिखा रहा है। अच्छा अच्छा। तो उनका इंस्पिरेशन था कि सस्टेनेबली लिव करे।
और वहाँ से उन्होंने अपना एक बायोगैस लगाया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अपनी होती थी, अपना गैस होता था। तो बाहर से उनका भी यही मकसद था कि बाहर से थोड़ा सा यूरिया डाल दिया, थोड़ा सा डाल, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਫੂਡ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ butterflies there, birds, it used to inspire me. So when I used to look at this diversity ਕਿੱਦਾਂ coexist ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਸਕੂਲ 'ਚ punishment ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਰਾਉਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ। तो 7 ਰਾਉਂਡ ਜਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 14 ਰਨਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ को ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ को ਕਲਾਸ के अंदर बैठना है। तो ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। मैंने पढ़ा बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अच्छा, बैंगलोर तो? बैंगलोर तो, फ्रॉम माउंट कार्मल्स। एंड उसके बाद हम बाहर गए, मतलब हम आई वाज इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड, मेरा जो करियर शुरू हुआ था तो ट्रैवल से शुरू हुआ था। I was an air hostess. And with Gulf Air, and worked with Singapore Airlines. फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये this is like not for me. A life for this you. is not a life for me. I need to get back to my roots. Okay. So फिर मैं तभी भी बाहर थी, but I went into media, I went into fashion, and then my last assignment was corporate affairs, as in branding for an multinational corporations, जहाँ पर internal external branding करके, तो वो ब्रांडिंग में बहुत मज़ा आता था। तो माय लास्ट असाइनमेंट वाज दैट वाज इन दुबई फॉर दुबई एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बहुत हो गया, दिस मटेरियल वर्ल्ड was not really me. It was for, मेरे को ऐसे लग रहा था I have to connect back to my roots. अच्छा अच्छा। And what can I do in my roots that I can find my vocation. मेरा vocation मिल जाए तो मेरे बहुत अच्छा। तो उसे खोज में मैं वापस आई तो पर्पस ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं ना। हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ मेरे को इतना था कि खाने की बहुत शौकीन थी, और हर बार मैं अपने पिताजी से यही सवाल पूछती रहती थी, वह ये सेब कहाँ से आया, ये कहाँ से अंगूर कहाँ से आया। तो वो मेरे को हंस के मेरे को पूछते थे, इतने सवाल पूछती है संगीता, एक काम कर, जाके खोज। अच्छा। तो उसी खोज में 2 साल लगे, जब मैंने आपको बताया कि ये इट वाज एन आई ओपनर। बहुत डिस्टर्ब्ड हुई, फार्मर सुसाइड्स एट क्लोज प्रॉक्सिमिटी देखा, एंड ऐसे कि जो हमें खिला रहा है उसका आत्महत्या हो रहा है। हाँ, लिटरली हिज सोल इज डाइंग। हाउ कैन आई लिव लाइक दिस? मैं कैसे ऐसे रह सकती हूँ कि मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? आई नीड टू अंडरस्टैंड फूड इक्वेशन कहाँ पर गलत हुआ है। मतलब आपका माइंडसेट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, जिथे ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। तो वही खोज से मैंने ये लगा कि जब तक मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि हमारा इक्वेशन, फूड इक्वेशन का गलत होना कैसे हो सकता है। जब बीज, हमने सोचा बीज तो अपने ही है, इतने सारे किसानों के पास बीज है, देखा उनके पास बीज नहीं है। एंसेस्ट्रल नॉलेज जो है, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, सब गायब हो गई। इसलिए हम इतने बीमार हैं। तो मैं उनको बोलती थी, अरे आपकी तो ताई ये बोलती थी करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, अभी मार्केट से लेकर आते हैं, बीज भी लेकर आ रहे हैं मार्केट से। तो बीज का पूरा
रिसर्च हमारे 25 साल में मेरे को लगे कि ये बीज जो है हमको स्वतंत्र बनाती है। तो इसी पैमाने पर अन्नदाना एक संस्था हमने ऑरोविल में शुरू की। अच्छा, ऑरोविल में हमने शुरू की ऑरोविल में, ऑरोविल बोटानिकल गार्डन में। उधर लाइक माइंडेड लोगों के साथ हाँ जी। ये सीड बैंक सेटअप किया, वेजिटेबल प्रोडक्शन शुरू किया। अच्छा। वहाँ पर जब वेजिटेबल प्रोडक्शन सीड के लिए किया, किसानों को ट्रेनिंग दी, बच्चों को ट्रेनिंग दी। फिर जब सुनामी हुआ तो सुनामी हमारे बहुत नुकसान पहुंचा रही थी, एंड वी हैड टू रीलोकेट आवर ऑफिस, आवर फार्मिंग इन बैंगलोर। पिताजी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। अन्नदाना ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। अन्नदाना ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, अन्ना इज फूड, दाना इज सीड। इट्स अ गिफ्ट ऑफ सीड एंड फूड, है ना। इट कम्स फ्रॉम हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से आंदे हैं कि अहम बीजम अन्न ही पूर्ण ब्रह्मा। आई एम द सीड, सीड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉस्मोस, कि मैं बीज से आती हूँ और मैं ही हूँ रिफ्लेक्शन उस कॉस्मोस की। ओके ओके। तो दैट इज हाउ अन्नदाना's जर्नी बिगैन, कि जब बीज हमारे पास है, हाँ जी, तो स्वतंत्र होंगे हमारे किसान, ठीक है। लेकिन जब हम डिपेंडेंट होंगे, हाँ जी, तो वहाँ पर आपका नुकसान ही नुकसान है। हाँ, चाहे सस्टेनेबिलिटी का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दो चीज़ें पैमाने पर काम करते हैं, मिट्टी, बीज। इसलिए अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स नेटवर्क। हमारा जो एक विजन था, जो हमारे सीड मेंटर से हमें मिला है, वो था कि seed is a gift of life to life itself. The seed must flow forever. It doesn't belong to Sangeeta, it doesn't belong Anyone. to Annadana. It belongs to the legacy of our farmers. हाँ जी। हम खाली custodians हैं इसमें, and we are humbled that the earth has chosen us to become their guardians. That's all. कब से आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी देर तो सेटअप हुई हुई है? 25 years। और 25 साल हो गए हाँ जी, सेटअप हुए हुए। हाँ जी जी, बाय बाय। हाँ जी ਬਾਈ ਜੀ। हाँ। ਓਹ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, सारा एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द सीड। अच्छा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हाँ। बिगिंस, द फाउंडेशन इज द सीड। उनका फाउंडेशन जो होता है बीजों से शुरू होता है। हाँ हाँ। जब बीज से शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, आपको लगता है कि हर एक फैक्टर, चाहे सॉइल होए, चाहे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होए, वो बीजों से ही तो होता है। मिट्टी, अगर आपकी खुराक आपने ठीक की, उस खुराक को जैसे हमने इंट्रोड्यूस कराया है ग्रीन मैन्योरिंग टेक्निक्स, जहाँ हम 9 दाने देते हैं, खाना देते हैं, परोसते हैं हम अपने मिट्टी को। जब उसका सॉइल हेल्थ को देखते हो, आउटकम वहाँ दिखता है आपको। तो सॉइल हेल्थ पर फोकस करके इसमें कौन सा प्रैक्टिस चाहिए आपको? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग, प्लांट हेल्थ टेक्निक्स, यू वांट सीड सेविंग एंड सोइंग टेक्निक्स, यू वांट अ कॉमन सेंस होम गार्डनर्स गाइड। हाँ, जिसमें आपको मैं वो कॉमन सेंस होम गार्डनर्स गाइड विजुअल स्टेप्स, स्टेप 1 कौन से टूल्स, स्टेप 2 कौन से सीजन्स, स्टेप 3 प्लानिंग, स्टेप 4 नर्सरी। तो ये स्टेप्स हम विजुअली दिखाते हैं। यू डोंट नीड टू come back to Annadana once I have given you that knowledge. The whole purpose is autonomy. उसका मतलब है कि आप एक बार आपके पास वो ज्ञान है, जैसे हमारे अमृत के पास है आज। Today I am very proud to say this has been my life's mission. कि ये माइलस्टोन अचीवमेंट है हमारे लिए। किसान आज़ाद होवे, आज़ाद होवे, एंड वो आज़ाद होने के बाद वो औरों को भी आज़ाद करे। ये पासिंग ऑन द जनरेशंस ऑफ नॉलेज, उसको डॉक्यूमेंट करना हमने अपने कॉर्पोरेट अफेयर्स का बहुत
बड़ा पार्ट बनाया पार्ट है। बनाया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड। वो लेगेसी को छोड़ोगे तो किस पैमाने पे छोड़ोगे? छोड़ोगे कि आपको लगे तो सही कि हाँ जी मेरा ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैं सॉल्व करूँगा, हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਦੋਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ 'ਚ फ़र्क पाया, जैसे लाइक फॉर इंस्टेंस कि क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हरी क्रांति आई तो हमारे जो क्रॉप पैटर्न्स चेंज हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ गए, उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, फिर पेस्टिसाइड्स आ गए, फिर उसमें क्या होता है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होता है खान चे उदो बीमारियां शुरू होंदी है। नहीं उदो किसान ने क्यों नहीं सोचा कि मैनू ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि देयर इज आल्सो दैट फैक्टर कि जी हाई यील्डिंग वैरायटीज है, मैनू और हाँ फायदा होएगा, इकोनॉमिक फायदा होएगा। सो बट व्हेन दिस रेवोल्यूशन बिगैन उस समय इट वाज रिक्वायर्ड क्योंकि इट वाज फैमिन मतलब फैमिन सब दा ढिड भरना सी उस टाइम ते, अपनी पॉपुलेशन वड्डी सी है ना ते। तो पर ओदे बाद यूनिवर्सिटीज़ होए, साइंटिस्ट होए, तदों देखो तो सही कि कितना स्प्रे लगांदे पे है। हाँ या तो देयर आर कंट्रोल्स, दे गिव द कंट्रोल्स आल्सो, पर इज इट रिक्वायर्ड? 10,000 साल साडे एग्रीकल्चर दा यू नो इज द रूट्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर। 10,000 साल, वो 10,000 साल 100 सालों विच केमिकल फर्टिलाइजर्स ने खत्म कर देता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग व्हेन ये देखो डाइवर्सिटी, हाँ वेदर इट इज just name the diversity, there is purple, mustard, कितने कलर्स ने नले देखो ना, देखो वाइट भी है, and the same diversity आपके प्लेट में होना चाहिए। अगर वो प्लेट में नहीं होए, बीट रूट्स नहीं होए, शलगम नहीं होए, all the diverse colors, जितने कलर्स होंगे उतने ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स आपके शरीर में जाएंगे। अब कॉमन सेंस क्यों गायब हो गया? जब खुराक में कुछ नहीं रही तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शक्ति, ताकत, सोचने की क्षमता गई। We have to revive, restore models like this, but छोटे पैमाने ते टेरेस गार्डन तो शुरू करो। मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਦ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪॉट ਗਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, बीज ਨੂੰ ਦੇਖੋ, प्योर लाइन सीड होए, देसी बीज होए। अभी प्रश्न मैंने बहुत सारे आंदे हैं कि बाहर दे बीज तू बचांदी है। तो मैं पूछती हाँ एक प्लेट च असी रोज खाना खांदे हैं, पुछा आलू कित्थों दी आंदे, मक्का कित्थों दी आंदा है, हाँ गेहूं कित्थों दी आंदी, मक्का मैक्सिको तो आंदी है, गेहूं पर्शियन बेल्ट, आलू इथियोपिया, मिर्ची टमाटर लैटिन अमेरिका। तो असी बाहर का खाना तो पहले ही खांदे पे है, कलोनियल टाइम्स, फ्रॉम द कलोनियल टाइम्स। फिर अपना किसान खुशहाल ते फ्री किਵੇਂ होएगा ना। और अगर वो बीज ओपन पॉलिनेटेड होवे, मतलब पराग स्पष्ट होए, तो ऑटोमेटिकली किसी पर निर्भर नहीं होएगा किसान। लेकिन आज की हुंदा पे है हाइब्रिड बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। अब मैनू की चाहिए टमाटर विच एक फिश दा जीन डाल दिता, वाई डू आई नीड दैट? साडी कैपेसिटी हैगी बैंगन, इट्स द किंग ऑफ वेजिटेबल्स इंडिया का, ओरिजिन इंडिया। 2005 100 बैंगन दे वैराइटीज़ हैगे साडे कोल, इंडिया कोल।
ਇੱਕ ਬੈਂਗਨ ਹੈਗਾ ਜੋ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, अच्छा उड़पी मत्तू गुला। ओके तो एक चैनल ने मैनू पूछा तू डरदी नहीं है कि तेरे बीज सारे गायब हो जाने हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कॉरपोरेशन सारे तेरे बीज ले लेने। तो मैं हंसकर यही बोली, देखो जी 400 साल पुराना बीज साडे कोल आया, इट्स गॉन थ्रू ऑल द कैलामिटीज। 4000 साल पहले इजिप्शियन टूम एक टमाटर आया, वो भी रहा। मैं कौन होंदी है, नेचर इज स्ट्रोंगर एंड सुपीरियर देन अस ह्यूमन बीइंग्स। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, बिल्कुल। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। आप साइलेंटली रोज 15 मिनट फील्ड में जाओ, चाहे वॉकिंग जाओ, ऑब्जर्व करो कि ये पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, या तो पत्तों को देखो या पेड़ को देखो। इट डजंट कॉस्ट मच टाइम। एक बटरफ्लाई एक नई आई है जो आप रोज वॉकिंग के लिए जा रहे हो, अरे ये तो नई आई है, ओ ऑब्जर्व करो। हाँ, nothing can stop us from understanding nature, she's there। एक पेड़ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ, it's in a concrete jungle। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਖਾਲੀ 2 ਏਕੜ ਬਚੇ हैं। ਉਹ 2 ਏਕੜ 'ਚ it's a forest, 17,000 varieties coexist। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, there's fruit forest, there is a spice forest, अच्छा, there is vegetable diversity, there is fruit diversity, there is कुछ भी मांगो तुसी, हाँ, सब कुछ है। सैलड चाहिए, सैलड मिल जाएंगे। तो रोज सवेरे मेरा एक कम हैगा, जल्दी 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 फील्ड से जाऊंगी 6 बजे, उठती हाँ 4 बजे, बड़े मस्ती नाल, और मैं बोलती हूँ अरे वाह, व्हाट इज दिस डे गोइंग टू ब्रिंग फॉर मी, ये क्या लेकर आएगा। और देखो फील्ड के अंदर जाकर देखेंगे क्या है, ओ माय गॉड, एक सडनली एक फ्लावर नजर आएगा जो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं है। तो क्लोव बीन्स, उसके जो ट्रेट्स हैं इतने अलग हैं, उसका टेस्ट अलग। फाइसलस जो फ्रूट हम खाते हैं उसके छिलका, इट्स लाइक अ, मैं क्या बोलूँ, इट्स सो टेस्टी। हर एक फ्रूट का एक सीज़न होता है, और हम खाली वही खाएंगे जो सीजनल है। अगर सीजनल नहीं है वो नहीं लेकर आएंगे। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੌਦਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦਾ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ डांस ही करने लगी, मैं क्या आ गई मेरी गोभी आ गई है ना। पर यही तो मजा है। तो उसी में आप यू नो द एनर्जी, वहाँ से हैप्पी एनर्जीज। अभी कुकिंग भी करते हो, कोई मेरा खाना नहीं बनाएगा, मेरे पति और मेरा खाना कोई नहीं बनाएगा, खुद पर खुद जाएंगे। आज सवेरे ये होएगा, दोपहर को ये खाएंगे, लोग भी आ जाए तो भी उनके लिए भी बहुत है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इतनी बरकत है, इतना अबंडेंस है। हमने कैसे सोच लिया कि हमें खाली इतने में रहना है, जब नेचर ही इतना, पूरी दुनिया अपनी है। कहीं भी चले जाओ, अरे आपके पास आ जाऊंगी, आपको थोड़े बीज दे दूंगी, आप मुझे कोई और कोई बीज दे देंगे। ये होता हम वो भूल गए हैं। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਦੈਨ व्हेन यू मेक एलिक्सर्स, यू मेक योर ओन यू नो एलिक्सर्स दैट टर्न फर्मेंट होकर अपने आप वाइन बन जाती है। हमने कोई उसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा ना, नहीं, केमिकल तो दूर की बात है, लेकिन उसमें हम लोग कोई ईस्ट नहीं डालते हैं, कोई क्या बोलते हैं, एमल्सिफायर्स नहीं डालते हैं, ऑर्गेनिक वाले भी मिलते हैं लेकिन हम नहीं डालते हैं। जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस खान दा देखे तो we didn't invent it, अरे this is from our कुदरती, हमारे
ਪੁਰਖੋਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, so that is something that you can't, and then when every day सिट्रस मिल गया तो उससे मैंने मार्मलेड बना दिया अपना। हाँ, उसमें डाल दिया पैशन फ्रूट। हाँ। एक बार आप चक्कर देखोगे ना, तो बारे 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 बारे। और रोज का यही नज़ारा कि आज क्या बनेगा, फील्ड से क्या बनेगा। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਰਡਨ, ਮੇਰਾ खेत ਕੀ देगा, है ना। एंड नेचर इज द बॉस। अरे कोई बॉस नहीं है आपका, वो नेचर बताएगा। अरे जी आज तो बारिश हो गई, ओ जाकर अपने पूरे केव्स दे फील्ड ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਠੱਕਣਾ ਹੈ। then you all of us are running, फिर suddenly you will find one snake that has come out and got entangled, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ, ਬਾਰੇ 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 ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਖੁਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, रोज ही रोज है। मैं क्यों बोलती हूँ? बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। वो बिल्कुल गलत। डोंट ट्राई एंड चेंज पीपल, बी द चेंज। साडे फादर ऑफ द नेशन है, यही तो कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू बी। उसमें क्या होता है, जब आप दूसरों औरों से एक्सपेक्ट करते, अभी ये मेरा अनएक्सपेक्टेड है टू सी व्हाट, this is joy. This is my milestone achievement of 25 years in agriculture, कि ये मेरा छोटा सा लड़का जो अमृत है, उसने कित कर दिखाला। This is my reward. That is all. ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਾ? पूरे आनंद, और कोई नहीं। हम लाइक जो आ जाए, बीमार हैगा, चल मैं तेन बिटर मेडिसिन, किंग ऑफ बिटर्स बना कर दे देंगे। देयर आर सॉल्यूशंस, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। हमें तकलीफ देखी नहीं जाती, जब तकलीफ होती है उसका सॉल्यूशन भी है, हमारे पास ही है। हमारे पास हमारा पावर भी है हील करना। जदों मेरा ऑपरेशन हुआ सी शोल्डर दा, किदा हुआ सी, टू फनी, आई मस्ट टेल यू दिस इज टू फनी। हाँ, गिरी मैं डक को कुत्ते के मुंह से छुड़ा रही थी, निकला मेरा शोल्डर पूरा। फिर पर इतने अच्छे डॉक्टर सर्जन्स मिले भी कि वो हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया देते समय भी उन्होंने जानकारी ले ली कि ये नेचर लवर है। तो डाइवर्सिटी के बारे में बात करने लगे। अच्छा, मेरे को पता भी नहीं होने दिया कि मेरा ऑपरेशन भी हो गया, वापस भी बाहर आ गई, तब भी डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट आई एम सेइंग इज I am a very spiritual person. Nobody need to guess that, you know, very myself with my techniques of my masters. तो energization exercises कर ली, उसमें जब आप energize हो गए तो आप में वो ताकत है जो आप जागृत करते हो और बोलते हो ये पूरी दुनिया, हम खाली इतना प्रेयर करते हैं कि खुशहाल पूर्वक रहे। जिसमें शक्ति है उसको और शक्ति दे, जिसमें नहीं शक्ति है उसको ताकत दे। When we pray with just intensity of just loving everything around you, you can't go wrong. I'm so happy to. Can I give you a hug? I can give you a hug too. Thank you so much. Oh, you're welcome, and come to Bangalore. Yeah, sure. Come sure. to Bangalore. Thank you so much. Thank you so much. Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal ji.